دنیا کی فراڈ جنگ بندی، عرب ممالک کی منافقت اور رات گئے فون پر کس نے معافی مانگی؟ یاسر رشید نے شہر کا دل دھڑکنے کی بجائے دہلنے آئیے لگا۔ سنتے ہیں۔ دور، بہت دور، تل ابیب اور حیفا کی عمارتیں روشنیوں میں ڈوبی نہیں بلکہ خوف کے سایوں میں گم ہو گئی تھی۔ نقب کے صحراؤں پر گرتے میزائل ایسے لگ رہے تھے جیسے آسمان اپنے غصے کو زمین پر اتار رہا ہو۔ ہر سمت سے سائرنوں کی گونج، چیخوں کا ارتعاش اور فضا میں بکھرتے دھوئیں کے بادل۔ یہ صرف جنگ کا شور نہیں تھا بلکہ تاریخ کے کسی آخری مارکے کی گونج تھی۔ جنگ بندی کی گھڑی قریب آ رہی تھی مگر میدان میں جیسے وقت تھم گیا ہو۔ ہر فریق، ہر کمانڈر ایک آخری وار، ایک آخری پیغام، ایک آخری زخم دینے کی تگودوں میں تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دشمنی لفظوں سے آگے نکل چکی تھی اور ہتھیار بول رہے تھے ہر طرف سے، ہر سمت سے۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل۔ ناظرین، یہ کل رات کا واقعہ یہ ایک حملے کی روداد نہیں بلکہ ایسا پیچیدہ جنگی اشارہ ہے جو مشرق وسطیٰ کے توازن کو ہلا کے رکھ سکتا ہے۔ کل ابتدائی طور پہ ہم نے یہ دیکھا کہ ایران کی جانب سے قطر میں موجود امریکی ایئر بیس کو نشانہ بنانا دراصل اس حکمت عملی کی پہلی عملی جھلک تھی جس کا خدشہ کئی ماہ سے ظاہر کیا جا رہا تھا کہ اگر اسرائیلی فوج جو ہے وہ مسلم سرزمین کو ایران پہ حملوں کے خلاف استعمال کرے تو ایران محض اسرائیل تک محدود نہیں رہے گا بلکہ اس پورے سسٹم کو لپیٹ میں لے گا جس سے اسرائیل کو عسکری و انٹیلیجنس مدد حاصل ہوتی ہے۔ اسی بنیاد کے اوپر جب امریکہ نے حملہ کیا ایران پہ تو ایران نے جواباً یہ کہا کہ خطے میں موجود اب کوئی بھی امریکی عہدیدار جو ہے وہ ہمارے نشانے پہ ہو سکتا ہے۔ لیکن کل اسرائیلی طیاروں کا ان ایرانی مقامات پر واپس پہنچنا جہاں چند روز قبل امریکہ بمباری کر چکا تھا، یہ خود ایک خاموش مگر بہت واضح اعلان جنگ تھا۔ اور جب ایران کو اس بات کی اطلاع ملی کہ یہ طیارے کسی مسلم ریاست کے بیس سے پرواز کر کے ایرانی حدود میں داخل ہوئے تھے تو وہیں سے وہ اپنی پالیسی کا دھاگا جوڑتا ہے۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ طے شدہ وعدے کا عملی روپ دکھائی دیتا ہے کہ اگر حملے خطے میں کسی بیس سے کیے گئے تو جواب صرف میزائلوں سے نہیں، پالیسی سطح پر بھی دیا جائے گا۔ چنانچہ قطر میں امریکی ایئر بیس کو نشانہ بنایا گیا اور اس حملے کی شدت کو علامتی سطح پر رکھا گیا، گویا ایران نے ہاتھ ہولا رکھ کے پیغام جو ہے وہ پورا وزنی دیا ہو، کیونکہ امریکہ کے بعد اگر مشرق وسطیٰ میں یا دنیا بھر میں کوئی سب سے بڑی بیس امریکہ کی ہے تو وہ قطر کے اندر موجود ہے۔ ابتدائی خبروں نے گو کہ ایک بڑے بر اعظمی جنگی دھماکے کا گمان پیدا کیا تھا، جیسے ایران نے مشرق وسطیٰ کے کئی ممالک میں امریکی اہداف کو نشانہ بنا دیا ہوں۔ لیکن جب صورتحال واضح ہوئی تو اس حملے کی سمت اور نوعیت دونوں بہت خاص نکلی۔ ایک ہی بیس پر حملہ، وہ بھی قطر میں جہاں امریکہ کی بڑی عسکری موجودگی ہے، اور پھر قطری حکام کا یہ کہنا کہ کوئی نقصان نہیں ہوا، یہ سب ایک جنگی بیانیے کو ترتیب دینے کی چالاکی کا حصہ تھا۔ گویا ایران نے نہ صرف ہدف کو درست چنا بلکہ اسے اس طرح نشانہ بنایا کہ اس کا سفارتی اور اسٹریٹجک وزن جو ہے وہ برقرار رہے۔ لیکن یہ سوال اپنی جگہ پر بہت اہم ہے کہ اگر ایران واقعی صرف علامتی حملہ کر رہا تھا تو کیا اس کا مقصد محض اسرائیل یا امریکہ کو خبردار کرنا تھا، یا یہ کہ عالمی برادری کو متوجہ کرنے کی ایک اور کوشش کی جائے کہ جنگ اب بامانی، خطرناک اور علاقائی سطح سے عالمی میدان میں داخل ہو چکی ہے۔ دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ اعتراف کہ ایران نے حملے سے پہلے پیشگی اطلاع دے دی، یہ ساری صورتحال کو ایک عجیب تضاد میں بدل رہا تھا۔ ایک طرف جنگی کارروائی، دوسری طرف سفارتی پیشگی انتباہ، یہ ایک عجیب ہم آہنگی اور مخمسے کی کیفیت تھی۔ اس پورے منظرنامے میں سب سے اہم بات ایران کی بدلی ہوئی حکمت عملی ہے۔ وہ دفاع سے نکل کے حملہ آور پوزیشن پہ آیا، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ مستقبل میں کسی بھی خطے، بیس یا ملک کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اگر وہ اسرائیل یا امریکہ کی عسکری مدد کر رہے ہیں تو وہ جنگی میدان سے باہر نہیں رہے، کیونکہ جنگ اب سرحدوں کی قید سے آزاد ہو چکی ہے، اور ایران نے اس حملے سے یہ ثابت کر دیا کہ وہ جنگ کے اصول اپنی شرائط پہ لکھنے کی تیاری میں ہے۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں پر بین الاقوامی سیاست، دفاعی بیانیاں اور سفارتی تعلقات ایک دوسرے میں الجھنے لگے۔ اب مسئلہ یہ نہیں رہا کہ کون کس پہ حملہ کرتا ہے، بلکہ یہ ہو گیا کہ ہر حملے کا مطلب کیا ہے، اس کا تاثر کیا بنتا ہے، اور کون اس سے کتنا سبق لیتا ہے۔ اور ایران کا حملہ دراصل محض ایک عسکری کارروائی نہیں، ایک مکمل تذکرہ تھا، ایک اعلان کہ مشرق وسطیٰ کی جنگی شطرنج پر اب صرف مہرے نہیں ہل رہے اور پوری بساط جو ہے وہ لرز رہی ہے۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں تاریخ نے سانس روکے اور دنیا کو پلک جھپکنے سے روک دیا، جیسے وقت کی نبض جو ہے وہ تھم گئی ہو۔ ہر آنکھ مشرق وسطیٰ کے آسمان پہ لکھی جانے والی نئی جنگی تحریر کو پڑھنے میں مصروف تھی، اور اسی دوران میں آپ یہ دیکھیے کہ دنیا بھر کے اندر مہنگائی کے اندر اضافہ ہونے
की खबरें मंजरेआम पे आने लगी। ईरान जो गुज़श्ता हफ्तों में मजलूमियत की तस्वीर बनकर आलमी स्टेज पे खड़ा था, वो अचानक ऐसे कदम उठाता है जो उसे जारे मकाम पे ला खड़ा करता है। और कतर में मौजूद अमरीकी एयरबेस पे ईरान का हमला बज़ाहिर एक जंग का आगाज दिखाई दे रहा था, एक ऐसा आगाज जिसमें जज्बात की शिद्दत, सियासी खतरात, सिफारती नताइज की आग भड़क सकती थी। और आलमी मंजरनामे पे उभरने वाला इब्तदाई तासुर भी यही था कि ईरान ने कई महाज खोल दिए हैं और अब उसके इकदामात पर अखलाकी हमदर्दी का तवाजुन जो है वो बिखरने को है। वो हिमायत जो उसे फलस्तीन की हिमायत, इजरायली मजालिम की मुखालिफत और दिफाई पोजीशन के बायस हासिल थी, अब वो नरमी से खिसकने लगी है। तज्जियाकार, बैनुल-अक़वामी मुबस्सरीन, बैनुल-अक़वामी सियासी पंडित, उनके नजदीक ईरान का ये कदम एक ऐसी लकीर को उबूर करना था जिसके बाद वापसी मुमकिन नहीं रही। अभी यही बहस या तज्जिये या मुबाहिसे चल रहे थे, पूरी रात हम मैराथन ट्रांसमिशन के अंदर मौजूद रहे। उसी बीच में कतर जो हमेशा से अमरीकी इत्तेहादी और खित्ते में अमन व एतदाली की अलामत समझा जाता था, वो अगर ईरान के निशाने पर आया तो पूरी अरब दुनिया में ईरान के साख को धचका लगा। यहां तक कि बाज ममालिक ने और बाज थिंक टैंक्स ने यह भी तखमीना जारी कर दिया कि ईरान की बैनुल-अक़वामी सिफारती पोजीशन में 70% तक कमी आ चुकी है और आलमी मीडिया के लिए एक नया मौजू था। और वैसे ईरान की जानिब से एक खुद साख्ता नुकसान या हिकमत अमली करार दे रहे थे और बहुत सारे लोग ये कहते थे। खालिद अल मोइना सऊदी अरब के सहाफ़ी हैं, कल रात उनसे बातचीत हो रही थी, वो कहते हैं कि नुकसान जो है वो कुछ नहीं हुआ इजराइल का या अमेरिका का, लेकिन 500 गुना नुकसान ईरान अपना करा चुका है। मगर इस सारी हलचल के बीच में अचानक एक पैगाम उभरा, वो पैगाम जो गोयाई से कम और असर ज्यादा था। डोनाल्ड ट्रंप का बयान जो एक तेजी से बदलते हुए मंजरनामे में गोया एक धमाका खेज खामोशी की मानंद था। ट्रुथ सोशल पे शाया किए उनके अल्फाज ने सारे बयानिए को पलट दिया कि ईरान ने हमें हमले से पहले बता दिया था, कतर को भी खबरदार कर दिया था, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, ईरान ने बहुत मोहतात रवैया अपनाया है, कोई नुकसान नहीं हुआ, अब वक्त है अमन का। यह बयान एक पूरी जंगी थीरी को तहस नहस कर चुका था। जिस वाकये को जंग का आगाज कहा जा रहा था, वो अब एक महदूद, मोहतात और पेशगी मशवरे से मशरूत अस्करी इशारा बन के रह जाता है। सिफारतकारी के पीछे लिपटा हुआ मिसाइल जो असल में पैगाम रसानी का हथियार था, ना कि तबाही का, और ईरान के इस अमल को एक पावर प्ले के तौर पे देखा जाने लगा। इस हमले ने जहां अमरीकी और इजरायली अस्करी बर्तरी को चैलेंज किया, वहीं पे यह भी जता दिया कि ईरान अब जारे जरूर है मगर गैर जिम्मेदार नहीं। और वो पल एक फैसला कुन मोड़ बन गया, वो लम्हा जब आग बुझाने का दावा आग लगाने वालों की जबान से आया और दुनिया ने उसे संजीदगी से लेना शुरू कर दिया। ईरान ने ना सिर्फ मैदान में हमला किया बल्कि एक ऐसा सिफारती चाल भी चली या ऐसा सिफारती जाल भी बछाया जिसने आलमी मुबस्सरीन को सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद हम जिस जंग को देख रहे हैं वो असल में एक मुज़ाकराती मेज पे खेलने वाली चाल थी। ईरान ने अपने अमल से ना सिर्फ फौजी पैगाम दिया बल्कि सिफारती बर्तरी भी हासिल कर ली, एक ऐसी बर्तरी जो खामोशी से दुश्मन की जबान बनकर गई है और दुनिया को यह पैगाम दे गई है कि जंग अगर शुरू होती है तो उसका रुख सिर्फ तोपों से नहीं, जबानों से, बयानात से और पेशगी सच्चाइयों से भी मुतय्यन होता है। इस मकाम के ऊपर एक और हैरत उभरती थी और वो हैरत ये थी, वो जज्बाती गुत्थी थी जिसने मशरक़ वस्ता की फजा में गूंजने वाले सायरन को वक्ती तौर पे खामोश कर दिया। जंग अभी मुकम्मल लड़ी नहीं गई लेकिन उसका पहला वार सिफारतकारी की कमान से निकल चुका था और शायद यही ईरान की असल कामयाबी थी या यही वो साथ थी जब वक्त की रगों में सनसनी दौड़ी और एक गुत्थी हुई कहानी एकदम ऐसे मोड़ पे आन पहुंची जहां हर चीज गैर यकीनी, मुबहम और खामोशी में लिपटी हुई दिखाई दे रही थी। मशरक़ वस्ता के आसमान पे छाए जंगी बादलों के बीच में अचानक सिफारती लहजे में एक ऐसी बाज़गश सुनाई देती है जो लम्हों में तनाज़े को सुलझा भी सकती थी और बुझा भी सकती थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से अमीर कतर से किया गया राबिता बज़ाहिर एक सादा खबर थी। खबर आई, हम ट्रांसमिशन बैठे थे, मालूम पड़ा कि अमरीकी सदर ने अमीर कतर से खुद राब्ता किया, लेकिन उसके अंदर वो दरारें मौजूद थी जो तारीख के सफ़ात को फाड़ के नई इबारत लिख सकती थी। उसी राबिते में अमरीकी सदर, दुनिया की सुपर पावर, उसका मालिक वो ट्रंप, वो ना सिर्फ अमीर कतर को ये बताता है कि इजराइल की जंगबंदी पर हम आमादगी का इजहार कर रहे हैं, बल्कि आप इस पैगाम को ईरान तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी अपनाएं। कतर ने जिस तेजी और खामोशी से ईरानी हुकाम को इस पैगाम से आगाह किया, उससे जाहिर हुआ कि पीछे एक मजबूत और मुनज़्ज़म पैगाम रसानी की कोशिश जारी है और ईरान ने इस पेशकश पे फौरी रद्द-ए-अमल देते हुए मशरूत जंगबंदी पर रजामंदी का इजहार कर दिया। मगर मामला वहीं खत्म नहीं हुआ। ईरान ने यह कहा कि कतर की सालसी में अगर कतर गारंटर बनता है तो हम जो है जंगबंदी के लिए आमादगी का इजहार करते हैं कि उधर से हमारे ऊपर हमले ना हो। लेकिन सारी सूरत हाल तब एक और नया मोड़ लेती जब डोनाल्ड ट्रंप ट्रुथ सोशल पे अचानक एक ट्वीट करते हैं और वह कहते हैं जिसपे पूरी दुनिया के मुबस्सरीन, जर्नलों और सफरा को वो चौंका के रख देते हैं। उनके अल्फाज में क्या था कि जंग बंदी अगले 12 घंटों में नाफिज होगी
और फिर उसके अगले 12 घंटे यानी मुकम्मल तौर पे 24 घंटों बाद मुकम्मल जंगबंदी का नफाज हो जाएगा, जो 12 दिन तक जारी रहेगी। ये अल्फाज किसी अमन मुआहिदे की मानिंद नहीं थे, बल्कि एक सियासी और अस्करी मुअम्मा थे, एक ऐसी पहेली जिसके हर टुकड़े के पीछे कोई ना कोई जंगी चाल छुपी हुई थी। सवाल यह उठा था कि आखिर वो 12 घंटे का वक्फा ही क्यों? अगर जंगबंदी तय हो चुकी है तो अमल दरामद फौरन क्यों नहीं? क्या इजराइल को उन घंटों में आखिरी और फैसलाकुन वार की इजाजत दी गई है, या ईरान को अपना दिफाई हिसार मजबूत करने की मोहलत दी गई है? और फिर 24 घंटों बाद जो मुकम्मल जंगबंदी का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, तो क्या यह वक्फा किसी खुफिया मिशन, पोशीदा सौदेबाजी या जेर जमीन कार्रवाई के लिए मखसूस है, या फिर यह महज एक नफ्सियाती हरबा है ताकि दुश्मन किसी भी वक्त हमले के खदशे में मुब्तला रहे और उसकी रात जो है वो नींद से खाली गुजरे? ऐसा लगता था कि ये 12 और 24 घंटे दरअसल जंग से ज्यादा एक सियासी और सिफारती शतरंज के चालाक मोड़ थे। एक जानिब जंगबंदी का तासुर देकर दुनिया के सामने सिफारती अमन का परचम बुलंद किया गया, तो दूसरी तरफ उन्हीं घंटों को इस्तेमाल करते हुए आखिरी अस्करी मकसद हासिल करने की राह हमवार की गई। और यही वो इबाम है जो हर तजियाकार को उलझा के रख चुका था कि आया हम वाकई एक अमन के करीब पहुंच चुके हैं या सिर्फ अमन का तासुर लेकर किसी बड़े हमले की तरफ बढ़े। मुझे अच्छे तरीके से याद है कि जब ये ट्रांसमिशन हमने रात 11 बजे, मैं जब इन हुआ रात 11 बजे उसमें बाकायदा तौर पे, और सुबह 6 बजे तक मुसलसल मैं ट्रांसमिशन करता रहा हूं। इब्तदाई तौर पे जो तजियाकारों से मेरे सवालात थे और उनके जो जवाबात थे या उनका जो तजिया था वो कतर के हमलों के हवाले से था, जो कतर पे हमले किए गए उस पे उन्होंने कहा गया नहीं 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 नहीं, ईरान ने तो ये खित्ते में बहुत बड़ी गलती कर दी। और जब बात सीज फायर तक आने लगी तो फिर यह कहा गया कि नहीं नहीं नहीं, ईरान ने शतरंज की चाल ऐसी चली है जिसमें वजन ही सारा उसका है। अब सिफारतकारी की जुबान में लिखे गए बयानात के पीछे की खामोशी चीखों को सुनना चाहिए। ये घंटे ना सिर्फ हाल बल्कि मुस्तकबिल की जंगों का रुख तय कर सकते थे, और शायद यही वो असल खेल था जो महाज पर नहीं बल्कि पर्दे के पीछे खेला गया। एक ऐसा खेल जिसके असल किरदार, असल नीयतें और असल नताइज हमें आने वाले दिनों में खुल के दिखाई देंगे। फिलहाल ये सब कुछ धुन में लिपटा हुआ है, लेकिन एक बात तय कि जंग अब सिर्फ बंदूक में नहीं वक्त से भी लड़ी जाती है। और ये वो लम्हा था जब तारीख में यही दो पुराने दुश्मन जिनके दरमियान बहुत कुछ अनकहे रह चुका था, डोनाल्ड ट्रंप की जबान जो कल तक अमेरिका की सबसे गरजदार सदारती आवाज समझी जाती थी, वो शक, तजाद और बेयकीनी की आज अलामत बन चुकी है। वही ट्रंप जो एक लम्हे में 15 दिन की मोहलत देकर दुनिया को सस्पेंस में मुब्तला करता है और अगले ही लम्हे 24 घंटों के अंदर या 48 घंटों के अंदर अपनी उस बातों को रौंदता हुआ ईरान पे हमला कर देता है। वही शख्स जो इंतखाबी मुहिम में दुनिया से जंगों के खात्मे का वादा करता है और इख्तियार में आते ही उन जंगों को नई शिद्दत से भड़काने लगता है, चाहे वो यूक्रेन की सुलगती सरजमीन हो, गजा का जख्म खुर्दा किनारा हो, या ईरान और यमन का शोरीदा हाले मैदान हो। आज जब वो कतर के जरिए जंगबंदी के पैगामात नशर करता है, जब वो ईरान को दरपर्दा इंतबा देता है और जब वो खुद को अमन का अलंबरदार बना के पेश करता है, तो एक खामोश मगर गूंजती हुई बदगुमानी फजा में फैल जाती है। वही अवाम जो मेक अमेरिका ग्रेटर अगेन यानी मैगा के शहर में उसे मसीहा समझ बैठे थे, अब उसके बयानात को सुनकर महज सर हिला देते हैं कि अगर अमन मतलूब था तो इस कदर मुतजाद फैसले क्यों, और अगर जंगी इरादे पुख्ता थे तो उन वादों का क्या जिन पे ट्रंप की सदारत की बुनियाद रखी गई थी। यह भी इस मौके पे सवाल उठता है कि क्या इजराइल वाकई अब दिफाई पोजीशन के अंदर आ चुका है? क्या उसके जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम, उसकी बेमिसल इंटेलिजेंस और आलमी इत्तेहादी नेटवर्क सारे के सारे थक चुके हैं? अगर ईरान वाकई दीवार से लगा होता तो क्या वो इस तसलसल और जुर्रत से हमले कर पाता? हकीकत तो यह है कि जिसे नाकाबिले शिकस्त समझा जा रहा था, आज वो मैदाने जंग में बाकायदा तौर पे हाँफता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिका भी अब वो अमेरिका नहीं रहा जो सिर्फ एक बयान से दुनिया के नक्शे हिला देता था। आज वो कतर जैसे मुमालिक की सालसी का मुंतजिर है। आज वो अपने फौजी अड्डों को महफूज होने की वजाहतें पेश कर रहा है और ईरान को खामोश रखने के लिए खुफिया तरकीबात दे रहा है। ये वही अमेरिका है जो कभी वियतनाम, कभी इराक, कभी अफगानिस्तान में अस्करी चालाकी का बेताज बादशाह हुआ करता था, कभी लीबिया, कभी शाम, कभी उर्दन उनके ऊपर हमले कर दिया करता था, मगर अब अपने ही अंदरूनी खलिफशार, अपने ही मुआशी दबाव और अपने ही आलमी अदम एतमाद की जिंजीरों में जकड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तारीख अब नई समत में सफर कर रही है, वो समत जहां सुपर पावर्स की गरज नहीं है, उनके अमल का वजन तोला जा रहा है, जहां ट्रंप जैसे रहनुमा के अल्फाज से पहले दुनिया यह देखना चाहती है कि असल ताकत किसके हाथ में है और असल खेल कौन खेल रहा है। पुराने आलमी निजाम की धज्जियां बिखर रही हैं और एक नई ताकत जिसे कल तक नजरअंदाज किया जाता रहा, अब बंकरों की तारीकी से, मिसाइल के दहाने से और बेनिशान ड्रोन की परवाज से अपनी मौजूदगी का ऐलान कर रही है। लेकिन यह कैसी जंगबंदी थी जिसके बाद हमलों की शिद्दत में कमी की बजाय तेजी आई? ईरान और इजराइल के दरमियान जैसे कोई खामोश मफाहमत हो कि जंग बंद होने से पहले जो करना है कर लो। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ हमले किए गए।
बार बार हमले किए गए, जैसे कोई पहलवान अपने मद्दे मुकाबिल को खेल खत्म होने से पहले चारों शाने चित करने की आखिरी कोशिश में लगा हुआ, और हर वार के बाद जब निशाना खाली जाए तो वो लम्हा भर को अफसोस करता हो, फिर एक और वार के लिए खुद को संभालता हो। यही कैफियत इस जंग बंदी के ऐलान के बाद भी दिखाई दी। ना कोई तवक्कुफ, ना कोई पसपाई, बल्कि उल्टी गिनती के हर लम्हे में शिद्दत दिखाई दिया, इस्तराब दिखाई दिया और फैसला कुन ज़र्ब की कोशिश दिखाई दी, जैसे दोनों फरीक ये जानते हों कि ये चंद घंटे बाकी हैं, उसके बाद शायद ऐसी खुली छूट ना मिले, शायद मैदान जंग महदूद हो जाए, या शायद सिफारतकारी की जिंजीरों में उनके हाथ बांध दिए जाएं। तो जो भी करना है वो अभी इसी हमले के अंदर कर लो। तेहरान धमाकों से गूंजा, फजा में सायरन चीखे, पूरी कौम की सांसें एक तसलसल में अटकी। उसी लम्हे तल अबीब और हैफा लरस गए, जहां इजरायली शहरी पनागाहों में दौड़े और खौफ के साए दीवारों पर साफ दिखाई देने लगे। उसके साथ साथ नकब का सहराई इलाके जो था उस पे ईरानी मिसाइलों की बारिश हुई। गोया जमीन भी इस आतिश में शरीक हो गई और इन सब के बीच एक तयशुदा वक्त जंगबंदी की घड़ी तेजी से करीब आती गई। लेकिन उस घड़ी से पहले हर फरीक, हर कुव्वत इस जुनून में मुब्तला दिखाई दिया कि कोई वार ना छूट जाए, कोई हिसाब ना बाकी रह जाए, जैसे ये आखिरी मौका है, जैसे वक्त ने खुद कह दिया कि अगर कुछ बराबर करना है तो अब कर लो, क्योंकि उसके बाद लफ्जों की जंग बाकी रह जाएगी। देखिए मैदान खाली होगा, ये मैदान मजीद